Hello, how are you guys doing? So we're here with another episode of Bougie and Benji. Bougie, today's topic is a little sensitive, isn't it? It is. Oh. Unrequited love, one-sided love, एक तरफा प्यार, यक तरफा प्यार. एक तरफा प्यार की I love what you've written on your background. एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है. औरों के रिश्तों की तरह ये दो लोगों में नहीं, बट सिर्फ मेरा हक है इस पे, which is the saddest thing ever. It's by far the saddest thing. Yeah, don't you want to share it with the other person? Does that make sense to you? I think most women in South Asia end up having this one-sided love. So it's very unfortunate, but no, debatable. I think it's universal. Feelings, okay. So, yeah, I mean, elaborate. How is it universal? As human beings, like whoever has existed on the face of this planet, I'm sure has gone through feelings of unrequited love where their feelings of love or affection were not reciprocated. It's very natural. I mean, everyone has experienced. No, I agree. But I think in the recent decades, in the modern day life, women are suffering more because of this unrequited love, or let's say this one-sided love. Because I think especially in the South Asian, I have more experience with the South Asian community. I think men don't have the spine to stand up for whom they love, whom they really care about. You know, when the time comes, तुमने वो शेर सुना है? वो तो शेर सुना है? कौन कहता है कि मर जाएंगे? कौन कहता है कि मर जाएंगे? वक्त आने पे बहन भाई बन जाएंगे. So, ये जो पाकिस्तानी और ये हमारे साउथ एशियन मर्द है ना, इन्होंने ये बात दिल को लगा ली. उन्होंने कहा वक्त आने पे हम बहन भाई बन जाएंगे, तब हम सब कुछ विल मेक श्योर कि हमें कोई प्रेशर ना लेना पड़े. जो स्ट्रगल है वो औरतें करें तो ठीक है, लेकिन जब हमें करनी पड़ेंगी तो we can't do this. No, but okay, fine. I get your point. You're saying that, you know, it doesn't lead to fruition. Unrequited love doesn't lead to fruition in the case of South Asian men. However, feelings to unko bhi aati hongi na, that they are suppressed. So, you know, unrequited love or unrequited, these feelings are, they're a very, they're intrinsically a very personal and private experience, in my opinion. I completely agree. Feelings तो सबको आती है, मोहब्बत सबको होती है, लेकिन मोहब्बत को निभाने की हिम्मत सब में नहीं होती है. Yes. तो ये मसला है, right? Exactly. तो ये जो यकतरफा प्यार है ना, ये फिर इसलिए सिर्फ औरतों के हिस्से में ज्यादा आता है क्योंकि उनकी मोहब्बत जो है ना, वो निभाने की हिम्मत, जो शक्ति है ना, वो खुदा ने बहुत दी है औरतों में. तो औरतों को बहुत शक्ति, and you use शक्ति a lot. तो ये जो ताकत है ना, ये हमारे जो अच्छे और बड़े नाइस और बड़े एजुकेटेड मर्द है ना साउथ एशिया के, इनको इस शक्ति के बारे में नहीं पता. इंडिपेंडेंट, यस. नहीं, एक्चुअली बात ये ना कि जब देखो, एक तरफ आपकी अम्मा है जिन्होंने आपको इमोशनल ब्लैकमेल करना है, एक तरफ आपके like that Indian matchmaking guy, that BP वाली अम्मी. BP देख मेरा बीपी ठीक हो जाए. बीपी, आंटी का बीपी नीचे नहीं आ रहा था, और जब तक आंटी का बीपी नीचे नहीं आ रहा था, लड़का कुछ नहीं कर सकता था. लेकिन मुझे एक बात बताओ कि ये जो अम्माएं हैं या ये जो ब्लैकमेल करने वाले अब्बाएं हैं, ये तो औरतों के पास भी होते हैं, लेकिन औरतों ने ना थ्रू आउट डेकेड्स ये सीखा है कि उन्हें अपना हक लड़के लेना पड़ेगा. तो वो जो है ना, दे रेडी टू टेक अ स्टैंड. जो हमारे साउथ एशियन मर्द है ना, उनका प्रिविलेज इतना ज्यादा है कि वो ना हटना ही नहीं चाहते. किस चीज से नहीं हटना चाहते? अपने प्रिविलेज को नहीं छोड़ना चाहते, अपनी फीलिंग्स, अपनी मोहब्बत के लिए या प्यार के लिए या जो व्हाट एवर अफेक्शन, उसके लिए वो नहीं लड़ना चाहते. ठीक है, इसलिए because the comfort is too much, they have to come out of their comfort zone, right? तो ये I think is the huge problem. जबकि औरतों ने बचपन से, especially in South Asia, औरतों ने बचपन से, औरतों को हमेशा कुछ ना कुछ पाने के लिए अपनी comfort zone से बाहर आना पड़ता है. उनको लड़ना पड़ता है. They've learned to struggle. Even for basic things like education, exactly. Going abroad, or even going out to meet friends. Exactly. ग्रेड 8 की बच्चों को आप देखो, टीनेज बच्चों को, वो अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हैं हमें परमिशन दे दें, फिर बड़ा प्लान बनाती हैं, फिर एक कन्विंस करती हैं, राइट? सो देयर इज दिस डिबेट from a young age for us.
एग्जैक्टली और बंदों को तो कभी ना इजाजत लेने की जरूरत पड़ती है, खासतौर पे जिस तरह के हमारे पेरेंट्स होते भी हैं साउथ एशियन कम्युनिटी में, कि जी वो कहते हैं कि जी अच्छा कोई बात नहीं, लड़का है, रात को 2 बजे आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग, सो दे नेवर हैव टू गो थ्रू ऑल दीज small little struggles, and that's why they don't grow a spine when it comes to standing for something that they Which is really why want. coming back to find us a Harry hashtag. I think yes, but yeah, we have to agree that मतलब जो कुछ भी रॉयल्टी थी, जो भी थी, और हमने काफी मजाक भी उड़ाया, लेकिन हैरी stood up for what he believed Absolutely. in, and that we have to. I said it even in our last episode that Harry जैसे बंदे बहुत कम होते हैं who would leave all the comfort of. He was a prince. He's still, I'm sure they haven't taken the title away, but he's still a prince, to leave the princedom behind and move on as an ordinary person in life with Meghan, with the love of his life by his side. I mean, that's amazing. I completely agree. You know, ऐसे I'm not saying कि सारे मर्द ही ऐसे होते हैं. There exactly. are Let's not generalize as well. जो कि कुछ ना कुछ even South Asian society में आपको मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर मर्द वो आपको बॉलीवुड में ही मिलते हैं. ऐसे जो बॉलीवुड के हीरोज होते हैं, वो जी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अपनी मोहब्बत के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये वो जो शाहरुख खान का आइडिया ऑफ रोमांस है, या ये एक तरफा प्यार है जिसकी ताकत बहुत ज्यादा है, इसकी ये तो बहुत ही डेस्पो था. रणबीर कपूर इस मूवी में तो इंतहा का डेस्पो था. मतलब वो बहन कह रही है नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ब्याह, लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स. ही सेड नहीं, तुम्हें तो मैं लेके रहूंगा. ये एक और मसला भी हमारे साउथ एशियन मर्दों के अंदर, ये जो हमारे प्यारे प्यारे नाइस बड़े स्वीट से जेंटलमैन होते हैं ना, इनको ना समझ नहीं आती, क्योंकि उनको लगता है कि ये उसका स्टाइल होएगा, होंठों पे ना दिल पे हाँ होएगा. सही. so I think it's very, you know, they know it कि कुछ ना कुछ करें, ना तो होगा ही, definitely. Oh my god, yeah, which is also further it's like a full on discussion if we were to talk about consent and how Pakistani, well, again, let's not generalize. Most Pakistani men do not really know the meaning of no, that no means no. It's not that, you know, hoto pe haan aur dil mein hoto pe na aur dil mein haan hoega. Lekin yaar, unrequited love hurts, Sujia. It bloody hurts. It does, because you see, the thing is, I think it's also and I would blame it. I mean, I blame everything on patriarchy, though. So don't blame me for blaming everything on patriarchy. I think what patriarchy has done is, over the years, and I mean from the start, but now it has become even a bigger problem, because now people are not getting into arranged marriages. So men have not only become, so initially men were emotionally unavailable. Now they're emotionally unavailable. In that sense, patriarchy has, you know, just you know, has done a greater disservice. तो वो सारा जो load है वो बंदियों पे आ जाता है, right? Because all these women have to, you know, उन्हीं को हमेशा कोशिश करनी पड़ती है कि वो अपने, because women are more emotionally expressive. तो एक अच्छी बात ये है कि पेट्रियार्की ने मर्दों के साथ तो बेचारों के साथ डिसर्विस की है, लेकिन उस हिसाब से औरतों को पेट्रियार्की ने इस हिसाब से उनके साथ, you know, they've not, it hasn't tortured them in that sense. They are still considered and accepted to be more emotionally, you know, expressive. तो वो होता ये है कि हम emotionally expressive भी होते हैं, हमें we wear our heart on our sleeves, हमें प्यार भी जल्दी हो जाता है. That's because, you know, the women are considered to be like emotional beings, right? Also, you can tie in the concept of toxic masculinity with all that, with the patriarchy thing that you're talking about, that men are supposed to suppress their emotions, not. I love it, but when men are, you know, when they express emotions and when they just wear their heart on their sleeves, I mean, you know what? Oh, let's have more of that, please. Men don't realize how sexy it is when a man shows his emotions. They don't understand that. उनको लगता है कि नहीं, उनकी macho-ness में सारा जो उनका alpha और character है वो ही सारा, that's the charm, right? The charm is when you show your feelings, man. Just put yourself out there. Yeah. So all the men listening out there listening to us, आप लोगों के लिए advice है कि अगर आपको for all the women in your life, just go. चाहे वो आपकी, sorry, go ahead. I just dropped a NF bomb, but okay, never mind. Sorry, censor, beep. Tell them you love them.
Tell them you love them, and whether that's your mom, your sister, your girlfriend, your wife, your daughter, it's very important to express yourself. So you Also, know, it's cathartic. I don't know why people just contain it. I mean, yes, to each their own. Some people are built in a way where they can't be expressive. I know, because I have experienced even in my family, with family members and the friends that I've had over all these years. Like, some people, it's very difficult for them to be expressive. It's just not in their personality. It's just not built in. They're not manufactured that way, where they can be expressive, which is also completely okay, because luckily there are different signs, or the different languages of love, right? exactly. So, I You mean, don't words always have don't to. have to be. It's just one of the language of love. Uh, Exactly. one of the languages of love. So there are लेकिन multiple ways you can show someone लेकिन that you किसी care तरह about. तो एक्सप्रेस किया जाए ना, चाहे वो कह कर किया जाए, Exactly. चाहे वो कुछ करके किया जाए, लेकिन कुछ तरीका हो कि थोड़ा एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस किया जाए. Yeah. यू नो व्हाट, मेरा ख्याल है अक्सर इस सारी इक्वेशन में ना एक चीज हम भूल रहे हैं, वो ये है कि अब मॉडर्न लाइफ तो आ गई है, अब वो अरेंज मैरिजेस वाला चक्कर भी नहीं रहा, या कम हो गया है. लेकिन पाकिस्तान में खासतौर पर आई सी के डेटिंग एप्स आई भी हैं और नहीं भी आई हैं. डेटिंग एप्स के बारे में लोगों के डिफरेंट व्यूज हैं, और इन्होंने बहुत काम खराब किया, क्योंकि बंदों को लगता है कि ओ अब हम डेटिंग ऐप पे आ गए, तो यू नो अब तो कुछ भी चलता है यार, क्या है कुछ भी, मतलब मुझसे बात करिए, मतलब ये बड़ी dating time पे बड़ी बने ढूंढने आए हैं, you know. या फिर फीमेल फ्रेंड्स ढूंढने आए. भाई, आपको दोस्तों की इतनी कमी है कि आप डेटिंग ऐप पे ऑपोजिट सेक्स की ही दोस्तें ढूंढने आए हैं. दोस्त. हाँ, अगर आपको दोस्तें चाहिए ना, what sort of mind free is this? एग्जैक्टली, अगर आपको दोस्तें चाहिए तो बतेरे दोस्त मिलेंगे आपको, लड़के लड़कियां ख्वाजा सिरा सब आपको मिलेंगे आउट देयर. ठीक है, लेकिन अगर आपको Is वाकई that में, how? Yeah, absolutely. हाँ, लेकिन अगर आपको वाकई Very में कुछ democratic platform. रिलेशनशिप चलाना है, तो फिर आप डेटिंग ऐप में आए हैं, तो भाई यार रिलेशनशिप. और फिर अच्छा, फिर एक वो भी होते हैं लुकिंग फॉर समथिंग सीरियस, राइट, लेकिन आखिर में होगा यार ये लड़की तो मुझसे बात करी है, 4 और से बात करी होगी, शादी तो मैंने परवीन से करनी है, खाला की बेटी, तो इससे बात करने में क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा बात कर Please लेते don't हैं. bash Parveen, okay? All the Parveens out there. No, सॉरी don't. सॉरी Okay? सॉरी परवीन, दैट्स जस्ट जेनेरिक नेम. सॉरी, आप बहुत अच्छी हैं परवीन, मेरी आपको सपोर्ट है. इनफैक्ट आपको भी अपने वो खाला के बेटे के साथ, वो 50 लड़कियों के साथ जो है ना बातें करता है, उनको लारे लगाता है, और सारी जिंदगी उसने आपके साथ भी यही करना है. Okay, आपको लारे लगाएगा और कभी कमिटमेंट पूरी नहीं करेगा. calm down, baby. It's okay. I know it's a very sensitive topic. यार And, परवीन को मशवरा देना मेरा फर्ज है, उसमें उसकी कैसी बहन हूं जो मैं उसको go preach, मशवरा girl, नहीं. go preach. But I Yes, think yes. another, like, this is probably coming from like a personal experience where, I mean, I'm sure we all have gone through, phases or experiences of life where we liked someone and they didn't like us back, or maybe they liked us back, but situations were such that they couldn't really go for it. And I think you can sort of induce an element of ego here. कि एक तो heartbreak होता है, when you have unreciprocated love, तो बुरी तरह से दिल टूटता है, there's like, oh, what, you finally like someone and the person doesn't like you back. But then the ego kicks in as well, which kind of can be self-destructing if not managed well, in a way that, you start blaming yourself for the other person's lack of feelings for you, which is like a different topic. Like, we don't address that. Not every situation or relationship is or would lead to fruition. Or agar if the other person doesn't like you back, doesn't mean that there's something wrong with you. Lekin hum as women, I don't know if men go through this, but as a woman, you sort of instill these feelings in your own head कि oh मेरे में कोई कमी होगी, यार उसकी I am वजह not enough. सिंपल है, ये है पहले ही औरतों की सेल्फ एस्टीम इतनी खराब की हुई है सोसाइटी ने. किसी को काली बोलते हैं, किसी को नाटी बोलते हैं, किसी को मोटी बोलते हैं, किसी को छोटी बोलते हैं, किसी को गिट्ठी बोलते हैं, किसी को गोरी बोलते हैं, किसी को चिट्टी बोलते हैं, किसी को पेल बोलते हैं. अल्लाह रहम करे, इन लोगों के पास तो पूरे माशरे के पास सारा वक्त औरतों को कुछ ना कुछ सुनाने को होता है. तो तुमने बच्चे पैदा नहीं किए, हाँ? छोटी मोटी, यस एग्जैक्टली, छोटी मोटी और बाप बहुत बतेरे. तुमने बच्चे पैदा नहीं किए, तुमने बच्चे पैदा कर लिए, तुमने इतने सारे कर लिए, तुमने इतने थोड़े किए, शादी नहीं हुई. तो अब बात तुम्हारा क्या, क्या करोगी, इतना करियर बना के क्या करोगी, तो ये सारी चीजें करके ना औरतों की सेल्फ एस्टीम बढ़ा के किसी और को दे दे. एग्जैक्टली. Actually heard it. तो मैं ये कह रही हूँ, सिंपल सी बात है यार, इतनी सेल्फ एस्टीम गटर में होती है कि जब आपके साथ कुछ बुरा होता है ना, तो एक औरत तो यही सोचती है, साउथ एशियन औरत तो यही सोचती है कि यार मेरे में ही कुछ गड़बड़ होगी. स्पीकिंग ऑफ डेटिंग एप्स, मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि एटलीस्ट
पूरी जनरल पॉपुलेशन का तो नहीं कह सकती, लेकिन डेटिंग ऐप्स पे तो 3 किस्म के मर्द होते हैं, और ये मैंने अपनी मुख्तलिफ दोस्तों के साथ सर्वे करके पता चला है मुझे कि 3 किस्म के मर्द होते हैं। एक वो जो फौरन शादी करना चाहते हैं, यानी आपको लड़की मिली So ना those मिली, are the, आपको those शादी probably freak the girls out. I'm like, I was meeting all like girls would think कि, oh यहाँ पे तो सारे are looking for casual stuff. So the only person like 1 out of 100 who's looking for something serious, उस बेचारे के भी chances घूम जाते हैं because the girl starts doubting them like नहीं too soon man. नहीं, पर मुझे बताओ आपको किसने ये मशवरा दिया कि आप डेटिंग ऐप ओनली फॉर सीरियस रिलेशनशिप, ओनली फॉर मैरिज? ओ भाई, और शादी करनी है तो अम्मी अब्बू को जाके बताओ। डेटिंग ऐप पे क्यों आए हो? डेटिंग ऐप पे जो लड़की भी आई Which होगी, is fine because if, as long as Bumble gives you the option, I think I am not going to blame that. Because Bumble or these dating apps kind of give you an option of like, oh, what are you looking for? नहीं So वो ठीक some है, people can लुकिंग say फॉर it's इज वन casual. थिंग, लेकिन कुछ लोग तो शादी करनी है तो बात करें, वरना ना करें, वरना स्वाइप लेफ्ट। अब मुझे बताओ भाई, अगर किसी ने डायरेक्ट तुम्हारी शक्ल देख के तुमसे शादी करनी होती तो वो खाला की बेटी परवीन कर लेगी ना, तुम क्यों परेशान, इतनी इतनी एफर्ट क्यों कर रहे हो? प्यार हो गया तुझसे विजया, कोई शक्ल देख के। दूसरी टाइप के, ये मैंने काफी सारी लड़कियों के सर्वे करने के बाद मुझे पता चला कि दूसरी टाइप के ये जो डेटिंग ऐप पे लड़के होते हैं ना, इनको हम कहते हैं टिपिकल एफ बॉयज। ये जो हमारे एफ बॉयज होते हैं ना, बल्कि इनको इनके लिए एक नई टर्म है, अगर जेंटल अम्मी एफ अब्बू सुन बॉयज। रहे हो ना किसी के, तुम बैन हो जाओगी। नहीं, मेरा मतलब जेंटल फ्रेंडली बॉयज, आप लोग पता है बेटा। सॉरी डर्टी माइंड, आई एम सो सॉरी। यस यस, एफ बॉयज यानी जेंटल फ्रेंडली बॉयज, समझ तो आप रहे होंगे, ठीक है? तो जो हमारे ये जो प्यारे से जेंटल फ्रेंडली बॉयज होते हैं ना, जेंटल फ्रेंडली बॉयज, ये इनका मकसद, ये ऊपर से जेंटलमैन दिखते हैं और अंदर से निहायती होते हैं, ठीक है? वो तो आप समझ आई लॉस्ट यू देयर बट यस। ठीक है। और फिर तीसरे टाइप के होते हैं जिन्होंने आपसे गप्पे लगाते रहने, उनको खुद भी नहीं पता होने चाहिए, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि वो सुबह नाश्ते में क्या खाना चाहते हैं, दोपहर में क्या खाना चाहते हैं, रात को क्या खाना चाहते हैं, तो वो What takes care of that now? What are you talking about? सही बात है, सही बात है, उसको लेकिन क्या पता वो नाश्ते में कितने अंडे खाते हैं, अम्मी को पता होगा। सही बात है, सही बात है। तो मेरी बात सुनो, अम्मी से ही पूछ ले कि मुझे किस किस्म की लड़की की शादी करनी वो चाहिए। तो फिर एंड में तो यही होता है ना, फिर तो अम्मी ही चूज करेंगी परवीन। हाँ, लेकिन अभी जरा जरा शॉपिंग करने में क्या है, थोड़ी शॉपिंग हो जाए तो कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन अब बॉय को इन द मीन टाइम बॉय नीड्स सम लाइक इमोशनल अटैचमेंट एज वेल। यार क्या बेचारे में बुराई है अगर वो रात को किसी से बात करना चाहता है। हाँ, थोड़ी सी बात कर ले, कभी कभी ऐसे भी मिले। That is an app idea. Make like a female robot who takes care of all this. By the way, सारा वक्त आपसे गप्पे लगाने में रेडी है। Exactly. फीमेल रोबोट को तो तुम छोड़ो, ये जो हमारे ये जो थर्ड कैटेगरी है ना, इसमें ऐसे ऐसे भी होते हैं जो लड़की से बातें तो कर रहे होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता क्या करें, तो सोचते हैं कि ऐसे कर लेते हैं, इससे थोड़े से पैसे उधार मांग लेता हूँ, आप मुझे 70,000 उधार दे सकती हैं? I swear this happened with one of my friends. This I am not even making it up. आप मुझे 70,000 उधार दे सकती हैं? बंदी सोच रही है मैं इससे एक बार मिली हूँ, ये 70,000 मैं 70,000 क्यों दूं इसको, क्यों? ठीक है, तो ये ऐसे भी होते हैं। तो यानी आपको हर तरह की जो है ना, oh my god, देखो बात सुनो, कुछ लड़की ने तो मिलना नहीं, शादी तो उससे होनी नहीं, शादी तो वो खाला की बेटी से होनी है, तो बेहतर है 70,000 ही मिल जाए, कोई बात नहीं। ये भी तो देखो ना, मतलब बिजनेस प्लान है ना, सोचा तो आप ये तो you and I have been best friends for the past I don't know God knows how many years. Even I wouldn't come up to you and be like, "Bujia, 70,000 होगी." But this boy has yet वैसे audacity और guts पे please give him credit. Please. इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि जो मिलता है ये ले लेते हैं, लड़की मिलनी नहीं है, शादी होनी नहीं है, अम्मा सेलेक्ट उधारी दे दे रहे हैं, 70,000 तो मिलने। बहन कह के तो नहीं कहा उसने, बहन उधारी दे दें आप। मेरा ख्याल है बस बहन रह गई। इन ऑल ऑनेस्टी अक्सा, मुझे ये बताओ कि इन सब चीजों का क्या हल है? हम कैसे अपने प्यारे नाइस जेंटल इन खसूसी अच्छे मर्दों को, भाइयों को, दोस्तों को बताएं कि जी आप थोड़ा सा अपने आप को इन पुरानी दकियानूसी सोच से निकलकर मॉडर्न लाइफ में थोड़ी सी स्ट्रगल करना सीख ले, तो ये इसका क्या हल है? अगर खेलना है तो खुल के खेले, वरना ना खेले। सही बात है, बिल्कुल। So if you're going to put yourself out there, then just effing own it. सही बात। Know what you want in your heart, and then go by, those convictions. Just don't fool around, man. Just be honest. Or even if you're fooling around, just know that you're fooling around and tell the other person कि भाई मुझको सीरियस कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो यहाँ पर एंजॉय करना है। हाँ, I'm sure that अगला बंदा एंजॉय करना चाहता है, be on the same page. हाँ, कम से कम एक
एक लेवल फील्ड पे तो खेले ना वो। Exactly, एक बंदा अपनी तरफ exactly. से गुल्ली डंडा खेल रहा है, दूसरा बंदा क्रिकेट खेल रहा है, तीसरा Yeah, बंदा it's right. फुटबॉल खेल रहा है, कुछ पता ही नहीं खेल क्या हो रहा है। And for all the women out there who, when they have to go through these feelings of unrequited love, where they feel like they're not enough. No, you bloody are. Yes, You are enough. You're more yes. than enough. और Hamisha though she's like, it's about fitting. The other person doesn't fit your requirements, or you don't fit the other person's requirement, which is completely okay, because that's how the way things work. देखो So there's बहनों, nothing wrong with you. Unrequited love can hurt in the moment, yes, but probably the best thing to happen to you. मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि देखो बहनों, अगर बात सिर्फ इतनी सी है, अगर वो तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता कि तुमसे मोहब्बत करते हुए ही थोड़ी सी फैमिली को कन्विंस कर ले, तो ही इज नॉट फॉर यू। आप अपने रास्ते जाएं, आपको बतेरे मिलेंगे, बहुत अचीवमेंट्स हैं दुनिया में, बहुत लोग हैं दुनिया में, दुनिया भरी पड़ी है, तो कोई ना कोई हैरी मिल ही जाएगा, तो टेंशन ना ले। हैरी सिर्फ एक बना था, we discussed it. हैरी एक बना था, उसके बाद में mold just kind of on its own. Even the mold was like, no, this is one man is enough. ये तो आप सही कह रही हैं। On that note, people, we have given you our 2 cents on this. आप लोगों के पास कोई राय है तो हमें अपने कमेंट्स में बताएं, और we would be happy to listen to you guys. Bye bye. Signing off. Peace.